अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज प्लेबैक। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। कैसी हैं आमना आप? मैं ठीक हूँ। जागी हुई हैं आज आप? मैं जागी हुई हूँ। अच्छा। हाँ। और क्या हाल चाल है? क्यों ठीक। जागी हुई हूँ? मैंने ले लिया नैप। गुड गुड। ले पाई मैं, ऑल्दो आपने आधा घंटा मजीद अर्ली कर ली अपनी रिकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी आई मैनेज्ड, गुड। क्योंकि मैंने ड्रामे पहले देखे हुए थे, प्राउड ऑफ यू। इसलिए प्राउड। ग्रेट जॉब। हम्म। दो तीन चीज़ें उन पे बात मेरे ख्याल में करनी चाहिए। एक तो मैं अभी अभी देख रहा था कि बाबू सर जो रास्ता जाता है वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई है बड़ी सिवियर किस्म की, और बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं वहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट फंसे हुए हैं। जी एंड लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन मिसिंग बिकॉज वो लैंडस्लाइड हुई वहाँ पे, और लॉट ऑफ द कार्स गॉट स्वेप्ट अवे। जी। तो ये बड़ी एक सैड न्यूज़ है, ट्रैजिक न्यूज़ है। सो बिकॉज वो मैंने गाड़ियाँ देखी हैं, वो सिर्फ गाड़ियाँ ही हैं, गाड़ियाँ लोग गाड़ियाँ नजर आ ऑब्वियसली। रही हैं, और मॉनसून जल्दी आया है इस साल, और ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से अनप्रिडिक्टेबली हेवी रेन्स ऑल ओवर पाकिस्तान। 26 जून से अब तक मेरे ख्याल है ओवर 220 people have died in Pakistan due to monsoon rain related flooding. So that's a huge number. तो इसमें जो खबर है, इसमें अराउंड 20 टूरिस्ट आर मिसिंग। ये I'm तो अब missing. तक की है हाँ खबर। बिल्कुल। तो ये बड़ी एक खबर है। दूसरा, वो बांग्लादेश में एक ट्रेनिंग एयर बांग्लादेशी एयरफोर्स का ट्रेनिंग जेट क्रैश्ड ऑन अ स्कूल और कॉलेज। Into a school actually. It was on a routine training, and because of some malfunction, they say the pilot tried to sort of steer it away from the civilian area but couldn't successfully do that. So it kind of crashed into a school slash college, and 27 people were like announced dead. जिसमें से 25 बच्चे थे, but over 100 are in hospital with a यस। lot of burn injuries. So condolences to Bangladesh, of course, and the people, or to all those parents who've lost their children. I mean, it's just heartbreaking. Sending lots of prayers to the people of Bangladesh, especially Bangladesh. to the families of those who passed away tragically in these in this incident. एयर इंडिया का जेट था, वो भी कॉलेज, वाज अ हॉस्टल। जी। वहाँ पे वो गया, तो अब बच्चे पढ़ रहे हैं, जी बिल्कुल। और यू नो एक इस तरह की चीज़ हो जाए तो It's a इट्स very, I feel a very grim day today, Hassan, because I feel that I don't know what kind of world we're living in. It's just देयर इज आल्सो द बलूचिस्तान वाला, बलूचिस्तान में तो खैर मैंने वो भी था, it's Gaza. I mean, there's गजा का है। starvation and thirst. There is no food and no water. And in the last 24 hours, 15 children have died because of starvation and thirst. परसों 19 बच्चे और people died out of starvation. So far, over 62,000 Palestinians have lost their lives ever since this conflict began, this massacre मैं तो कहूँगी। और मुझे तो समझ नहीं आती कि यूनाइटेड नेशंस और इतनी इतनी बड़ी वर्ल्ड एड ऑर्गेनाइजेशंस जो बैठी हुई हैं और जो एनजीओज काम कर रहे हैं, और मैं तो कहती हूँ चलो, centuries से, since time immemorial, there has been a clash between the Muslim world and the Western world over ideological differences or whatever. वो तो एक रहा है, लेकिन मुस्लिम उम्मा क्या कर रही है मुझे तो ये नहीं समझ कुछ आती। नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही। मुस्लिम उम्मा has so much power. What are the Muslim countries, rich, power, oil fueled countries doing to help their brothers and sisters in Palestine? Trying their best to get Israel recognition. Trying to, exactly. And those videos that you see of Israeli soldiers and Israeli politicians now, and it's just it's mind boggling. I've been following Rick Owens, और वो जो जिस किस्म की वो share करते हैं, and then of course he comments on them, condemning the statements given by Israeli politicians who are saying that it's okay. It's okay to kill Palestinian children. Tomorrow they will grow up to be terrorists. So it's okay. Nip the evil in the bud. And they're comparing it to World War, and they're comparing it to the Nazi camps. And this is what they used to say, that it's okay to kill the Jews. That was wrong and this is wrong, and it's just mind boggling that in this day and age. और पता है क्या है हसन, अब ज़्यादा तकलीफ दे बात ये है कि पहले तो चलो न्यूज़ टेलीग्राफ्स के थ्रू आती थी और अखबार निकलती थी, अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, लोगों के पास इंफॉर्मेशन ऐसी। अब हम ये देख रहे हैं अपने
स्क्रीन्स पे देख रहे हैं लोगों को मरते हुए, हम इतना डिसेंसिटाइज हो गए हैं, वो बलूचिस्तान पे आ जाएं, आई मीन वो फुटेज वायरल हुई हुई है जिसमें 12 लोग खड़े होके एक कपल को गोलियां मार रहे हैं और वो वीडियो सब देख रहे हैं, और फिर भी अरेस्ट हैव हैपेंड बट कुछ भी नहीं होगा। आई मीन जाहिर जाफर के साथ क्या होगा, मर्सी प्ली अब उसने दे दी है, अभी तक दैट शुड हैव बीन रिजॉल्व्ड। सो वेयर इज द जस्टिस इफ यू लुक एट अ micro scale and a macro scale all over the world? These are devastating times, and we're seeing them on our phones. It's like, Allah maaf kare, it's like every day आपको एक न्यूज़ फीड मिल रही है कि इतने लोग मर रहे हैं, इतने बच्चे स्टार्व कर रहे हैं, इतने बच्चों को खाना नहीं मिल रहा। The visuals are mind boggling. क्या कहें? क्या कहें exactly? It's very very tragic and बहुत तकलीफ है। वो ज़्यादा लोग यही कहते हैं ना कि हम क्या करें, we're helpless, we can't do much. ठीक है, we can speak about it. हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर और हाईलाइट कर रहे हैं, बट फैसला तो उन्हीं लोगों ने करना है जिनके पास पावर है, और अगर वो नहीं कर रहे इस बारे में कुछ, इतने वो डिसेंसिटाइज हो गए हैं और इतने उनको पत्थर के हो गए हैं कि उनको नज़र नहीं आ रहा। गज़ा की आपने बात की, ये बच्चे खाना ना मिलने की वजह से मर रहे हैं, तो ये तो we don't even know what that feels like कि इतनी भूखों के इंसान मर जाए। 2025 में, आज की दुनिया में, आज के दौर में लोग भूख से एक जगह पर मर रहे हैं। बिल्कुल। और मतलब अगर आप हमारी उम्मा की बात कर रही हैं तो जो वेल्थ, जिस तरह की वेल्थ उनके पास है जी, क्या बड़ी बात है, बात ही कोई नहीं उनके लिए। And that includes Pakistan as well. Yeah. The kind of wealth that some Pakistanis have, Yeah. a lot of Pakistanis have, no big deal. But and मैं ये नहीं कह रहा कि लोग जो आम अवाम है वो बहुत बहुत बड़े दिल के साथ वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो एड में कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं जानता हूँ लोगों को जिन्होंने गज़ा की रिलीफ के लिए वहाँ पे डोनेशंस दिए हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो एड पहुंच ही नहीं रही। वो वाली एड तो नहीं पहुंचती ना, जो आप डोनेशन जाके देते हैं कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो वाली एड तो वो पहुंचने नहीं दे रहे। तो वो नहीं पहुंच रही तो किस तरह की एड कैसे पहुंचे, वो हुकूमतों का काम है, बड़े मुल्कों का काम है कि वो इंटरवीन करें, नहीं करें। एनीवे, विद अ प्रेयर दैट मे देयर बी पीस एंड मे अल्लाह ईज द सफरिंग ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। आज हम इकट्ठा हुए हैं ख्वातीन हज़रात, ये प्लेबैक का जो हमने प्रोग्राम शुरू किया उसके ऊपर आपका फीडबैक आ रहा है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग फीडबैक नहीं आ रहा जो मैं एंटिसिपेट कर रहा था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जितने स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट आती थी कि यकीन का सफर, प्यारे अफजल, ये आ तो रहा है वैसे लोग नहीं, बस एक हद तक आ रहा है। अब ये है कि आपके बारे में मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप एक ड्रामे का बहुत बोलते हैं, वो जब ड्रामा करना शुरू देन यू क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, अब ये कर रहे हैं, इस पे कोई डिस्कशन नहीं हो रही है। अच्छा, यकीन का सफर इतने अरसे से आप लोग कह रहे थे, प्यारे अफजल आप लोग कह रहे थे, इन पे डिस्कशन अब आगे चलेगी, फलां कर लें, वो वाला इंक्लूड कर लें, कर लें, मैसेजेस आ रहे हैं कि वो वाला ड्रामा इंक्लूड कर लें। अब जो कर रहे हैं उसको आप देखते नहीं है, और करने के चक्करों में ये बात मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन लोग देख भी रहे हैं, बहुत से लोगों ने कहा कि अच्छा वी आर गोइंग टू वॉच द ड्रामास अगेन। चलो लेट्स सी, आज पता चलेगा। आज हमारी प्लेबैक की तीसरी एपिसोड आएगी जिसमें हमारे पास यकीन का सफर की एपिसोड नंबर 3 और 4 है, हमारे पास प्यारे अफजल की एपिसोड नंबर 5 और 6 हैं, और तन्हाइयां मैंने नहीं देखा। हाँ, कोई बात नहीं, अभी 2 करते हैं। okay. अभी हमने नहीं किया क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों का फीडबैक आया कि अभी तन्हाइयां मत इंक्लूड करें, बिकॉज वो बहुत एक ये दोनों ड्रामे हैवी वॉचेस हैं, तो ये ना आपका फोकस शिफ्ट हो जाए। तो हम आपके उस पे चलते हैं फीडबैक के ऊपर, जैसे आप लोग बोले वैसे ही करते हैं। आपने कहा यकीन का सफर कर ले, हमने कर लिया। आपने कहा प्यारे अफजल कर ले, हमने कर लिया। अब जो आगे भी आप ड्रामे कह रहे हैं वो भी हम इसी तरह करते जाएंगे। ठीक है। कल से अलीज़ा शाह बहुत खबरों में है। अलीज़ा शाह कब खबरों में नहीं होती? आजकल ज्यादा ही है, क्योंकि उन्होंने रात को बैठ के और काफी सारी स्टेटमेंट्स पास की अपने इंस्टाग्राम पे जाके। Just because you're a senior doesn't mean कि आप उसका काम रोक दो, आप उसकी रोजी रोटी रोक दो। It's okay.
मैं अलीज़ा शाह से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खबरों में तो हैं लेकिन वो ड्रामों में भी आए, जी, जो बिल्कुल। काम है एक्टर्स का। हाँ, और मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा, उन्होंने जो इतराजात किए, जो हाँ। बातें हैं बिल्कुल सही हैं और वो सच हैं, लेकिन काम से मेरे ख्याल में वो भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए। आई एम श्योर कि हर बंदा इंडस्ट्री में तो हरासर नहीं होगा ना, अच्छे लोग भी होंगे इंडस्ट्री में। Yeah. और भाई खैर हॉट बाइट्स में ही बात करेंगे। एक बात उनकी जो थी, एक बात सिर्फ, उस पर मुझे थोड़ा सा इतराज भी हुआ। कौन सी? उन्होंने कहा कि जब मैं कहीं गई तो उन्होंने मुझे जब बुलाया मीटिंग में, तो उन्होंने कहा आपकी रेपुटेशन सही नहीं है, एज इन यू नो आप सेट पे तंग करती हैं, तो हाउ डेयर दे आस्क मी दैट। सी है कि आपको मुझे कास्ट करना है या नहीं करना, लेकिन आप ये मुझसे सवाल पूछने वाले होते कौन हो कि मेरी इमेज खराब है? Why are you even calling me for a meeting? If you're asking me. So I thought that was a bit odd, because अगर आपकी reputation है, people are asking you to come and have a chat with them, have a conversation with them, Yeah. and then they want to offer you work, and if they have some concerns, they will ask you. Yeah. मतलब आप employment के लिए जब जाते हैं job interviews में, it's a common question कि अच्छा क्या है, आपको कभी कभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, तो इसमें इतना माइंड करना नहीं। बाकी जो बातें हैं वो सीरियस है, हरासमेंट की जो Of उन्होंने course बात की, serious है, बिल्कुल। पेमेंट डिलेज की और भी लोग बात कर रहे हैं, वो अब तो सीरियस बहुत ज्यादा बातें, लोग बात कर रहे हैं। जरूरी बातें, तो ये तो है, मक्खी है और कुछ बड़े नहीं हो इरिटेट कर रही है। कुछ नहीं हो सकता। ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी टाइटल ब्रेक का। टाइटल ब्रेक से जब वापस आएंगे, टाइटल तो है ही नहीं हमारा प्लेबैक का, तो वक्त कहाँ से होता है टाइटल ब्रेक का? कोई वक्त नहीं हुआ टाइटल ब्रेक का। हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे ड्रामों की तरफ। पहला ड्रामा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्यारे अफजल, जिसकी एपिसोड नंबर 5 और 6 आज हम डिस्कस करेंगे। एपिसोड नंबर 5 और 6, प्यारे अफजल, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगी कि ठीक है यार, ठीक है। मैंने 2 एपिसोड्स देखी, मैंने एंजॉय भी की, लेकिन मैंने क्वेश्चन भी किया कि अच्छा, वही वाली बात है कि हाँ ठीक है, अच्छा है, मगर ऐसा कुछ मैं कोई वो नहीं हुई कि मैं बड़ा बह गई जज्बात में कि ओ माय गॉड क्या ब्रिलियंस चल रही है टीवी पे। मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ जब वो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है। अब आपकी बात मुझे बार बार याद आई कि ये बता क्यों नहीं पा रही, व्हाई डोंट दे जस्ट से दैट दे डोंट वांट टू मैरी मेहताब। पूरा उन्होंने पूरा स्कीम किया है कि जो अफजल है, अफजल उसको नाम उसका नाम लो और उसका कहो, और 4 महीने के लिए उसको नौकरी दी 2 लाख रुपया महीना के हिसाब से कि तुम 4 महीने में अमीर हो जाओगे। अभी इतनी मिलेगी कि गिनते रह जाओगे, और डेजिग्नेशन भी ऐसा कि देखते रह जाओगे। तुमने मोहब्बत का दावा करना है। और फिर वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है वो मुझे बड़ी आर्केक सी लगी, शायद इसलिए कि मैं आजकल देख रही हूँ और उस वक्त शायद आर्केक ना हो, लेकिन मैं ख्याल उस वक्त के लिहाज से भी ठीक है। अफजल जो है वो सीम्स टू बी अ वेरी स्ट्रीट वाइज बॉय। ऐसा नहीं है कि वो कोई बोंगा है या भोला है, उसको नहीं बात समझ आ रही कि हो क्या रहा है। Strangely, I found these 2 episodes of Pyare Afzal more refreshing than the first 2 episodes of Manto. अब मैं ये बात कोई मैं यार, एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। खैर, मैं कोई डिसरिगार्ड नहीं कर रहा किसी चीज को, बट जब ये 2 किस्तें मैंने देखी, मुझे इसमें ह्यूमर भी मिला, मैं एंटरटेन कहाँ? भी हुआ। कहाँ? ह्यूमरस था वो, जो 2 बहनें बैठी हुई हैं, अफजल बैठा हुआ है, पहले बड़ी वो फरा बेहोश हो गई, फिर अफजल चलते चलते उठा बेहोश हो गया। हाँ। यू नो, इट्स माँ की जो कॉन्वर्सेशन थी बेटी के साथ, वो आ रही है नफल पढ़ रही है, फिर आ रही है, अभी तक वो नफल ही पढ़ रही है, नमाज पढ़ रही है, तो मुझे लाइट हार्टेड सा, एक एंटरटेनिंग सा लगा। दूसरा, इसमें जो फलसफा हम अब देख रहे हैं खलीलुर रहमान कमर साहब की राइटिंग में, वो बहुत बढ़ गया है। मेरे ख्याल में तब इतना फलसफा नहीं था, और इन 2 किस्तों में मुझे हार्डली कोई ऐसा डायलॉग मिला जो कि जिसके लिए मुझे अपने जहन पे जोर डालना पड़े कि यार अच्छा ये क्या बात हो रही है, अब मैं इसको कान लगा के सुनूं एक एक लफ्ज को कि मुझे समझने में एक मोमेंट लगेगा। ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज वेरी सिंपलिस्टिक kind of narrative. I felt it was oversimplistic actually. You can also say कि मतलब it was simplistic to the point of being illogical. Yeah. But it was simple. I enjoyed it. I was like, okay, it's a good, like, refreshing change compared to the 2 very, very heavy dialogue ridden episodes of Manto. तो मैंने एक्चुअली इन 2 किस्तों को उस नजरिए से एंजॉय किया। जहां तक ये बात है,
मैं कुछ लोगों के कमेंट्स देख रहा था जो पिछले एपिसोड पे आए कि यार कि ये तो कहानी प्यारे अफजल, जो हमने केमिस्ट्री की बात की थी, कि ये कहानी जो है ये है ही इस तरह के प्यार की कि जिसमें शायद केमिस्ट्री आपको ना नजर, किसी ने कहा कि शायद उनके इतने सीन्स भी नहीं है साथ में। तो मुझे तो नहीं पता ना भाई, मैं तो नहीं देखा वाना ड्रामा यार, मैं तो अभी देख रहा हूँ, तो मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि जैसे जैसे एपिसोड खुल रही है। हाँ, बाय द एंड ऑफ द एपिसोड शायद मेरा ओपिनियन, बाय द एंड ऑफ द ड्रामा मेरा ये ओपिनियन चेंज हो जाए, आमना का ओपिनियन चेंज हो जाए, लेकिन अभी तो मैं वो बोलूंगा ना जो मैं देख रहा हूँ। मुझे तो नहीं पता कहानी आगे कहाँ जा रही है, ये किस तरह की मोहब्बत है, ये क्या है। लोग बिना उसको चले जाते हैं कि यार ये कहानी। अब माइंड यू, प्लेबैक का आपका जो फीडबैक है उसको थोड़ा सा आपको भी चेंज करना पड़ेगा। You have to give your opinion and your feedback, keeping in mind, bearing in mind that we have not watched the drama, so we don't know what it is about. I don't know what's going to happen next. You watched it, so you preempting and saying कि यार ये तबसरा जो है ये invalid है, उसकी मुझे समझ नहीं आ रही। Anyway, but I enjoyed these two episodes. अच्छा, आज है हसन की extreme annoyed stance on life and everything. मैं देख क्यों? रही हूँ, लग रहा है, नहीं, लग नहीं। रहा है. Let's talk about that first. What? Why are you annoyed today? I'm not annoyed. Okay, are you sure? Yeah. रास्ते मैं में देख रहा था comment. आते हुए गाड़ी वाड़ी तो नहीं लगी नहीं कोई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना पीना खाया हुआ है या इंटरमिटेंट चल रही है? नहीं, I'm fine. क्यों लग रहा कार्ब है विथड्रॉल तो नहीं, शुगर यार? ये क्या बात है, अगर बंदा अपना ओपिनियन दे तो जरूरी नहीं नहीं, ये वही बात है जैसे खवातीन को बंदा बोले, गैस लाइट कर रही हूँ मैं आपको, आपको लग ये रहा वही बात है जैसे खवातीन को बंदा ये बोले कि ओ शी इज बीइंग रूड बिकॉज़ शी इज प्रॉब्ली PMSing. आप, are you being gaslit? Yeah. Okay. I apologize if you feel you're being gaslit, but I feel you're also a bit irritable today. No, I'm just, Yeah. is it not a fair opinion I mean, when somebody says कि oh you're saying this, you don't know what the drama is about. Of course I don't know what the drama is about. I've not watched it. हाँ. So hold that thought till I finish watching it. Okay. ये आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि जो बहन है छोटी, I do think she does like अफजल, और जो बैठ के वो डे ड्रीम सी कर रही होती है। तो अगर वो if she likes अफजल, तो फिर उसने अपनी बड़ी बहन के लिए अफजल का नाम क्यों लिया? यही तो कन्वोल्यूटेड चीज है, ताकि अफजल जो है उसके सर्कल में आ आ जाए, जाए, ambition किसी में आ तरह जाए। से ये कांटेक्ट एक इस्टेब्लिश हो जाए, कोई राब्ता एक बन जाए, और फिर वो या ये वो जमाना बताया हुआ है कि जब लड़कियां पसंद करती थी लेकिन वो खुद को भी नहीं पता होता था that they like somebody unless it comes and hits them in the face, which it will eventually. maybe Maybe. मुझे ऑफ कोर्स ये हुआ कि आई रियली लाइक्ड कि जो फरा और लुबना की, जो लुबना ही है ना, फरा लुबना की जो वालिद साहब कहते हैं आके कि मुझे अफसोस है कि आई वाज रॉन्ग, एंड देन ही कॉल्स हिम, आई रियली लाइक दैट, आई अप्रिशिएटेड दैट, ही कॉल्स हिम एंड ही सेड कि मुझसे गलती हो गई और तुम बेकसूर हो और तुम वापस आ जाओ। फोन इसलिए किया है कि तुम वापस आ जाओ और आके अपनी सीट पर बैठो। वो कहता है कि थैंक यू बट मैं वापस नहीं आऊँगा क्योंकि मैं सिफारिश की नौकरी करना नहीं चाहता, तो मैं अपने बलबूते पे आऊँगा। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि उनको कहना चाहिए था कि बेटा यू हैव प्रूवन योरसेल्फ वर्दी ऑफ दिस जॉब, आई एम नॉट, मैं तुम्हें सिफारिश पे नहीं रख रहा अब, तो मैं तुम्हें समझता हूँ कि तुमने अपना सबूत दिया है, साबित किया है कि तुम वर्दी हो इस नौकरी के, तुम आ जाओ वापस, ऑन मेरिट मैं तुम्हें रखता हूँ। मेरे ख्याल में वो क्लर्क की नौकरी करना भी नहीं उन्होंने चाहता। ऐसा नहीं कहा, बिकॉज डिग्रीज उसके पास खासी हैं, बीए किया है उसने, BA थर्ड उसने डिवीजन किया में सही, लेकिन किया हुआ उसने। किया हुआ है उसने। अच्छा, फिर वो बाप को भी नहीं बताता कि ये हुआ है, ये भी नहीं बताता कि मैंने नौकरी छोड़ी है क्योंकि मैं सिफारिश की नहीं करना चाहता, बट आई विल फाइंड अनदर जॉब। आई विश कि उसने ये बता दिया होता, आई विश कि बहन को बता दिया होता। बहन जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, उसने चाबी उसको मिली, अलमारी भी उसने खोली, लेकिन उसका ख़त नहीं पढ़े उसने कहा मैंने छोड़ दिए, लेकिन ख़त वो और भी रखता है आके। तो ये बातें, आई मीन आई डोंट नो, द रीज़न व्हाई वी रियली अप्रिशिएट परवरिश इज़ कि जो आप सोच रहे होते हैं वो आप देख रहे होते हैं, एंड इट काइंड यू गो विद द फ्लो बिकॉज द थिंग्स दैट you can relate to. This kind of a drama, I mean, I understand the appeal, but I just feel that it's kind of really, you really have to suspend your disbelief to go with the flow. मुझे एक दो चीजें नहीं समझ में आई। एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आई कि एट व्हाट पॉइंट डिड फरा डिसाइड कि ठीक है अफजल से बात कर लो। ये मुझे कोई कॉन्वर्सेशन कोई एक मोमेंट, क्योंकि फरा का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस था अब इसके अगेंस्ट, और जब लुबना अफजल का नाम लेती है फरा बेहोश हो जाती है, उसको मारती है, फिर उसके बाद वो लुबना को थप्पड़ मारती है, लुबना को काफी डांटती है, डांट डपट करती है। फिर लुबना ये कहती है कि मैंने तो
इसलिए बोला था कि वो अफजल किरदार में है, हाँ यू नो, एज एन एट्रीब्यूट, नॉट के यार कि वो उसका हाँ, नाम अफजल है. हाँ तो देन शी अपोलोजाइजेस और सब कुछ. तो ये इतनी बड़ी चीज थी कि यार अफजल कहाँ से आ गया. बट ऑल ऑफ अ सडन दे वर इन अ रेस्टोरेंट Do एंड you think that it's because they've heard the father say कि वो किरदार का अच्छा है और वो नहीं, they don't hear that part. नो नो मुझे लगा कि शायद इसलिए नहीं, कि लुबना की माँ ने लुबना को आके बताया ये सब हुआ है. बट ऑल ऑफ अ सडन दे वर सिटिंग इन दैट रेस्टोरेंट एंड सो आई वाज लाइक यार ये रेस्टोरेंट गए, वो आए, वो मिले, किस बेसिस के ऊपर वो रेस्टोरेंट चला गया उनके साथ. yeah. हमने वहां पे सिर्फ ये कॉन्वर्सेशन देखी होती हुई कि नहीं नहीं मैं आपके अब्बा के ऑफिस में नहीं जाऊंगा, तो मैं वापस नौकरी पे नहीं जाऊंगा. तो आई वाज लाइक अच्छा इसकी पिछली जो जितनी कॉन्वर्सेशन है, ये आए होंगे, बैठे होंगे, क्या बात हुई होगी, क्यों आया वो रेस्टोरेंट में, क्या वो भी तो देखना बनता था ना. इट वाज लाइक मुझे नहीं पता ये असल में एडिट हुआ है या क्या है, ये असल में था या नहीं था, yeah. बट आई वाज लाइक दिस वाज हेस्टी. उसका कुछ होना चाहिए था कि यार ये अफजल से मिले हैं, उन्होंने बोला है कि हम तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं, कुछ नहीं जो यार, बहनें इतनी बात कर रही हैं तो उन्होंने, दोनों बहनों ने कब डिसाइड किया कि अफजल को ही हाँ अफजल recruit का करते क्यों हैं? डिसाइड हुआ. हाँ अफजल अच्छा, को, और उसके बात करने के बाद भी देयर वाज एम्बिग्विटी, क्योंकि शायद वो बेहोश हो गया था, तो उन्होंने कहा कि अब पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा, तो वो अभी भी सोच रही है कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें. तो थोड़े से लैप्सेस हैं इसमें. जो इवन माँ को वो लेके आती है लुबना दिखाने के लिए कि वो नफल पढ़ रही है, उसके बाद माँ चली जाती है, उसके बाद माँ दोबारा आती है तो वो नफल पढ़ रही होती है. तो मुझे लगा कि वो सीन थोड़ा सा उसकी वो लिंक नहीं था उन दो सीन्स में उस तरह का. या तो ये अगर दिखाना था कि यार वो तब की नफल पढ़ी है, नमाज पढ़ी है, अब भी तब तक की पढ़ी है, तो वो नहीं कन्वे हुआ मुझे कि यार कि अच्छा ये वही कंटिन्यूएशन चल रही है. वो ऐसा लग रहा था कि पहले माँ ने देखा, अब माँ दोबारा उसको देख रही है, लेकिन माँ ने कनेक्ट नहीं किया कि वो तब भी पढ़ी थी, अब भी पढ़ी. यू नो व्हाट आई मीन. और हमने भी नहीं कनेक्ट किया, मैं भी नहीं उसको उस तरह से हम भी नहीं कनेक्ट कर पाए. माँ का वो मैं कह रहा था जो माँ की आंटी से दूसरी आंटी से कॉन्वर्सेशन थी फोन के ऊपर, वो फनी थी. कौन सी? वो आंटी कह रही थी कि अच्छा हमने तो सोना बना लिया, हमने तो सोने के वो कर हाँ, दिया. वो हाँ. कह रही है अच्छा शाम को फोन करेंगे, वो कह रही है मिलने दें, वो कह रही है हाँ ये भी बात शाम को हो जाएगी. 3-4 दिन से तैयारी कर रहे हैं, आज तो बता ही देंगे. हाँ, आई थॉट दैट वाज लाइक रिश्ता तोड़ दिया मत आपके साथ कि नहीं तोड़ा? नहीं, वो फोन पे अंकल ने फोन पर तोड़ना ना, था. अभी नहीं तोड़ा. बट एक चीज जो मैं वाकई में जो मुझे महसूस हुई वो है 3 लोगों की स्क्रीन प्रेजेंस. एक सना जावेद, एक आयजा खान और एक हमजा अली बासी. या तीनों की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस है. और सना का किरदार मुझे शायद मैं अगर उस वक्त देख रहा होता तो शायद मैं तब भी ये बात करता, शी डजंट सीम लाइक अ सपोर्ट नो कैरेक्टर. नॉट एट ऑल. एग्जैक्टली मैंने भी यही सोचा कि नॉट एट ऑल. वो लगता है जैसे शी इज द लीडिंग. शी इज लाइक इट्स लाइक अ 3-way situation एब्सोल्युटली ऐसा ही है, ऐसा ही है. मगर which would be kind of odd, two sisters falling for the same guy, but let's see where it हाँ, goes. हाँ. But it's an interesting like dynamic. दोनों बहनों का जो रिलेशनशिप है, हाँ. बड़ी बहन ने थप्पड़ मार भी दिया, वो आके कहती है मार दो, कहती नहीं तो बाप बड़ी बहन को मैं कैसे थप्पड़ मार. तुम भी मुझे थप्पड़ मार दो. अरे चलो, ये कहाँ होता है कि बड़ी बहन के मुंह पे थप्पड़ मार दो. तो अच्छा एक बहनों का रिलेशनशिप. बहनों का भी अच्छा है, और जो वैल्यू सिस्टम पे थोड़ी थोड़ी उन्होंने की भी है ना जगह जगह पे, वो बड़े अच्छी वैल्यूज. जिस तरह अंकल जो हैं इनकी लड़कियों के अब्बा जो बुलाते हैं चीफ अकाउंटेंट को, तो कहते हैं आप कितने बच्चे हैं, वो कहता है 3. मिस रोजी, इनके कितने बच्चे हैं? नहीं सर, इनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई. तो फिर मिस रोजी को 3 महीने की तनख्वाह का चेक दीजिए और फारिग कर दीजिए. कहते हैं अच्छा मिस रोजी जो है उनकी कितने बच्चे हैं, उनकी शादी है कि उनको फिर फायर करना है. मतलब उन्होंने ये देख के फायर किया कि हु नीड्स अ जॉब मोर. एंड आई डोंट नो इफ दैट्स गुड और बैड एक्चुअली. इट्स काइंड ऑफ नहीं, वो लड़की ने गलत इल्जाम लगाया था तो लेकिन उसको वो इन्होंने ये भी तो अकम्प्लिश है उसके अंदर. हाँ इनको भी कर देना इनको भी चाहिए. करना चाहिए था, लेकिन इन पे तरस खाया कि इनके बच्चे हैं छोटे. तो स्क्रीन प्रेजेंस बड़ी अच्छी है. अगेन हमजा के जो सीन्स थे, I have to say Hamza looks much better now as in into 2025 than he did then. So whatever Hamza's done, well done. मैंने चैट जीपीटी को पूछा, I have to confess, क्या मैंने 2 तस्वीरें डाली हमजा बिफोर एंड आफ्टर की, और मैंने कहा हाउ डज हमजा अली वासी लुक डिफरेंट इन 2025 एंड बिफोर एंड आफ्टर. चैट जीपीटी ने पूरी एक थ्योरी दी मुझे. क्या मैं बड़ी खुश हूँ इससे. हमें एक्चुअली पूरी थ्योरी दी कि उन्होंने ये चीजें उन्होंने अपनी कराई हैं चेहरे पे. तो आप हमजा से पूछ लेती allegedly चैट जीपीटी ने एलिगेशन. आप हमजा से पूछ लेती डायरेक्ट. नहीं, मैं नहीं पूछना चाहती और कोई बताता भी नहीं है.
मगर ये है कि एक वाजे फर्क है उनके चेहरे पे जो कि बहुत अच्छा है, सो इट्स वेरी गुड। अच्छा, मुझे इतना नहीं लगता, बहुत है, बहुत तो नहीं मुझे लगता, बहुत थोड़ा है। बहुत मैंने कहा उम्र के हिसाब से हो शायद, नहीं 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 नहीं, इतना तो आ जाता बहुत उम्र। है। और it's the lower half of the face, you know, and it's very good. अच्छा है, it's good. ओके, आयजा ने तो कुछ नहीं कराया, सना ने भी आयदा कुछ, ने नहीं लगता कराया, सना ने भी नहीं लगता कराया है। आयदा they और both सना look ने the कराया। same. They both look quite the same as they do now. So I'm sure हल्का फुल्का बोटॉक्स होगा because वो तो सभी कराते हैं to maintain their youth. But major जो है ना चीजें, हाँ, मैं आपको पता नहीं क्यों लगा मैं इरिटेबल हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश आपसे बड़े हाय मैं सच्चे ओके बड़े ह्यूमिलिटी के साथ एक गुजारिश करना चाहता हूँ। वो वाला। लोग जो जिनके मुझे मैसेजेस आए कि यार आपका एक्सपीरियंस खराब हो रहा है प्यारे अफजल देखने का, मैं क्या करूं इस बारे में। आप लोगों ने जब बोला देखो अब हम देख रहे हैं, तो मैं और आमना तो अपना ओपिनियन शेयर करेंगे ना आपके साथ, और हमारी तो जॉब है कि हम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करें। तो ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो हम देख रहे, मैंने पहले देखा हुआ नहीं, हो सकता है वो ओपिनियन बदल जाए, तो आप परेशान ना हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका एक्सपीरियंस खराब हो रहा है हमारी वजह से, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ना देखें ये शायद कमेंट्स। इसीलिए लोग नहीं देख रहे, हाँ, ये हो हमारा सकता है। प्लेबैक या हम लोगों का एक्सपीरियंस खराब हो हाँ, रहा ये है। हो सकता है। लेकिन मैं ये ऑनेस्टली, ये सच्चा एक ओपिनियन है, मैंने जो देखा मैंने आपको बता दिया। आमना ने भी, आई एम श्योर, मैं जितना उनको जानता हूँ, जो वो उनको लग रहा है वो आपसे शेयर कर रही है। हमें क्या किसी के वो निकालने की जरूरत अच्छा, है। अब यहाँ दो चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी ऑल्सो इन कोरिलेशन टू, मैं मंटो नहीं हूँ। पहली बात तो ये कि जो मैंने बात की थी कि जी सिग्नेचर स्टाइल है KRQ का लिखने का, जैसे शेक्सपियर या चार्ल्स डिकेंस का था, तो वो इसी स्टाइल में लिखेंगे, लेकिन उनकी राइटिंग की कहानियां इवॉल्व करनी चाहिए। सिग्नेचर स्टाइल नहीं है ना, सिग्नेचर स्टाइल है, नहीं है बात ना, सिर्फ प्यारे ये है, अफजल और बंटो में नहीं, कहाँ है वही सिग्नेचर? चीज है, कम नहीं है, है यार, कम है, बढ़ गई है लेकिन है, लेकिन फलसफा मैं कह रहा हूँ है ही नहीं। है फलसफा है लेकिन कम है। लेकिन जो चीज फर्क है KRQ, और कुछ लोगों ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कंपेयरिंग यू नो हेवी वेट्स टू, नो इट्स नॉट दैट। द थिंग इज कि जब शेक्सपियर और डिकेंस लिख रहे थे तो वो अपने वक्त और जगह के मुनासबत से ही लिख रहे थे। उस वक्त तो ऐसे ही होता है। वो जुबान बोली जाती थी, अब हमें आर्केक लगती है, इसलिए भी ये जुबान KRQ की आर्केक लग रही है बिकॉज आजकल ये नहीं बोली जाती, ऑल्दो ये उनका सिग्नेचर स्टाइल है। एक तो पहली बात ये होगी। दूसरी चीज ये है कि बहुत लोगों ने कहा, हमें बहुत तो नहीं, 2-4 लोगों ने और कमेंट्स में कहा कि जो मिस्टर मंटो हैं ही इज ऑटिस्टिक। आई हैव नो रीजन टू बिलीव ही इज ऑटिस्टिक, चलो ये बातें तब करेंगे जब बंटो आएगा, अभी ये बातें हम क्या बिकॉज हम कंपेयर भी तो कर रहे हैं ना KRQ की राइटिंग को, वो तो किरदार का एक वो है, तो उस पे ऐसा कोई लगा तो नहीं। है ना। आई डोंट नो मैन, लोग एक्सप्लेनेशन ढूंढ लेते हैं ना कि हायरार्की की स्पेलिंग इसलिए गलत होंगे कि क्यों गलत है कि शायद वो ऑटिस्टिक है। हाँ। पर यार इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों जैसे ढूंढनी? आज आहत की एक पोस्ट चली जिसमें उन्होंने हाइएटस लिखा हुआ था, जिसमें HAITUS, मैंने कहा हेटस हाइएटस, बड़ी अच्छी तस्वीर है लेकिन स्पेलिंग गलत है, तो हो जाते हैं स्पेलिंग गलत, जिनकी अंग्रेजी अच्छी है उनके भी हो जाते हैं, बड़े बड़ों के हो जाते हैं। तो मुझे प्यारे अफजल बुरा नहीं लगता, ना लगा है अभी तक, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। एंड स्पेशली अगर आप उसको खलील रहमान कमर साहब की जो लेटर, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने किए, जो हमने देखे, उनके मुकाबले में एक्चुअली मुझे इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग, आई एम एंजॉयिंग इट। आपको मेरा बैंड ऑफ ब्रदर्स नहीं थियरी पसंद आई? कौन सी बैंड? जो मैंने आपको बैंड ऑफ ब्रदर्स थियरी दी थी कि जिस तरह सिस्टरहुड होता है, ये ब्रदरहुड, इनका एक दूसरे को सपोर्ट करता है, जो कि सच है मुझे लगता है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा है। चलें उस पर भी जब मंटो आएगा तो हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। मुझे आप एंजॉय कर रही हैं प्यारे अफजल या नहीं कर रही? मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि आगे क्या होगा, और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि मैं वहां तक पहुंचूं कि लोग जो कहते हैं कि इट वाज अ मास्टरपीस मुझे नहीं लग रहा है, एंजॉयबल जरूर लग रहा है, बट डजंट सीम लाइक वन ऑफ दोस ड्रामास दैट शुड गो डाउन इन हिस्ट्री, टू बी ऑनेस्ट। आई एम एंजॉयिंग इट। आई थिंक द एक्टिंग पोटेंशियल, आपको उस वक्त आपने नहीं देखे होंगे ज्यादा ड्रामे आयजा खान के या अमतल अब्बासी के, आपको नजर आ रहा है कि ओह माय गॉड, दीस टू एक्टर्स हैव इनक्रेडिबल पोटेंशियल, दे आर सो गुड, एंड यू नो। अच्छा, एक सीन मुझे याद है जो मुझे बहुत पसंद आया, जब वो उसको जॉब ऑफर करती हैं। अब नाउ यू कैन टेल
that Afzal is absolutely smitten by Lubna. Yeah. अब वो कह रहा है अच्छा मेरा क्या होगा 2-4 महीने बाद मोहब्बत का क्या होगा? वो कहती क्या होगा मोहब्बत का, तुम धोखा दे दोगे? कहते नहीं मैं धोखा नहीं दूं. खुदा की कसम मैं तो किसी और लड़की के चक्कर में नहीं हूँ. हाँ, वो it was really अच्छा था, cute. हाँ. एंड इवन जो बीच बीच में कहीं पे जैसे वो सो रहा होता है उसको फ्लैशबैक आता है, एक ख्वाब तो लुबना को भी आया, अफजल आया उसके ख्वाब में. तो ये चीजें मजे की हैं, ये जो छोटी छोटी इस तरह की चीजें होती है, और जहाँ पे हम ये अच्छी बातें पॉइंट आउट कर रहे हैं, और जहाँ पे हमने मैं मंटो नहीं है कि ग्रैंडियोर और उसकी सिनेमेटोग्राफी और उसकी स्क्रीन और इतनी ज्यादा तारीफें की हैं, वहां पे मेरे ख्याल में बनता है कि हम ये पॉइंट आउट करें कि जब आयजा गाड़ी चला रही थी तो पीछे जो VFX था बहुत बुरा था भाई. बहुत बुरा था. जो जो बारिश कि हो रही गाड़ी होती है, जो बारिश हो रही होती नहीं है. नहीं कि वो दिखाना था कि गाड़ी एक्चुअली इज मूविंग, तो वो जो ग्रीन स्क्रीन लगी हुई थी, it was really bad. It was very bad. Also, what's the point in blurring out Mercedes I का don't know, man. monogram? I mean, Toyota का लोगो ब्लर आउट, सारा फोकस सीन से हटके उधर चला जाता है. वो नहीं, उसके तो वो पुरानी वाली ब्लरिंग आउट थी ना, डब्बा लगा हुआ था हाँ. Mercedes I, के लोगों I, का. I think we've stopped doing that now. ये शुरू में I जब हमने think- रिव्यू किया था तब भी हमने काफी ये शोर मचाते थे, लेकिन now it's been a while. अब मैंने काफी अरसे से देखा है, या तो वो शॉट ही ऐसे लेते हैं कि ऐसे हाँ. नहीं, लेकिन प्राडो के शॉट्स थे नहीं ना नहीं, अभी. बैरिस्टर बुरहान की गाड़ी का आपको लोगो नजर आ रहा था. नजर आ रहा था. मंटो में भी आपको जो 2 प्राडो आगे खड़ी हुई हैं उसमें आपको मेरे ख्याल में टोयोटा का नजर आ रहा था लोगो. तो कुछ चीजें बेहतरी की तरफ भी गई हैं, VFX बेहतरी की तरफ चले गए हैं. गाड़ियों के सीन जेंटलमैन के बहुत बेहतर थे, लेकिन जेंटलमैन नदीम बेग ने नहीं था डायरेक्ट किया. नहीं. यहाँ के सीन्स बहुत अच्छे थे भाई मंटो के. ठीक है, ठीक है. ठीक है जी. और कुछ कहना चाहेंगे आप इन दो के बारे में? आगे. ऑफ कोर्स मुझे ये अंदाजा है, ऑल्दो कि मुझे फेंटली मुझे लगता है मैंने तोड़ तोड़ के प्यारे अफजल देखा था, जो देखा था. यार एक हफ्ते आप कहती है मैंने देखा था, हाँ. एक हफ्ते आप कहती मैंने नहीं हाँ. देखा था. आप हम अज्यूम यार करें हो आपने नहीं सकता है ना देखा. घर में बाकी लोग देख रहे हो तो मैंने तोड़ तोड़ के देखा था. ऐसी मुझे एपिसोड बाय एपिसोड, मतलब डाई हार्ड अब फैन. इस बार क्या याद है आपको? इस बार याद आया कि मुझे पता है कि अभी जो टर्निंग पॉइंट ड्रामे का आएगा, ड्रामा शायद उसके बाद शुरू होगा. दैट इज व्हाट आई एम वेटिंग फॉर. ओके, वो कब आएगा? मुझे नहीं पता. आपका ख्याल होगा ये टर्निंग पॉइंट है कि वो उसको नौकरी पे रखेंगे. ये नहीं है ना टर्निंग पॉइंट. किसी ने कमेंट किया था 7वीं 8वीं एपिसोड के बाद उठेगा, हाँ, तो फिर अगली 2 किस्तों बाद उठ जाएगा. उठ जाएगा. तब तक हौसला रखिए, नाराज मत होइएगा. ये सोच नहीं, समझ नाराजगी की क्या बात है हमारी. नहीं, वो opinion माइंड है. करते हैं कि भाई आप लोग क्यों हमारा एक्सपीरियंस क्यों खराब हम करते हैं? आप ना देखें, हम कोई रिफ्लेक्ट तो नहीं कर सकते लोगों की ओपिनियंस. हमारी अपनी ओपिनियन नहीं, सिर्फ आप ये सोच के बस आप ये मेरे ख्याल में आपके लिए आसानी हो जाएगी. आप ये सोच के कमेंट करें कि मैंने नहीं देखा, आमना ने देखा हुआ है, जो भी देखा हुआ है. मुझे कसम से कोई आइडिया नहीं है कि कहानी किधर जा रही है, मां सिवाय एंड के वो मुझे पता है कि हमजा के किरदार ने मर जाना है, जी. ये मुझे पता है. उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता ड्रामे का. हम पहुंचेंगे वहां तक कैसे, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, आई स्वेयर. ठीक है. मूविंग ऑन टू देन, यकीन का सफर. उसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता. उसके बारे में भी इनको कुछ नहीं पता. ये एक पत्थर के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आपको मुझे वाकई में नहीं पता. 2017 में भी ये पत्थर के नीचे. और यकीन का सफर का तो मुझे ये कुछ भी नहीं पता ना कि एंड में भी क्या होगा. आई हैव नो आइडिया. अच्छा, यकीन का सफर, डिस्पाइट माय वाचिंग इट नाउ फॉर द थर्ड और फोर्थ टाइम, आई एम स्टिल एंजॉयिंग इट. Really? Yeah, that's These episodes are kind of slow. yeah, I don't think so at all. I mean, it's just interesting. आहद ही how- नहीं आया इन एपिसोड में. कोई बात नहीं. क्या मतलब कोई बात सज्जल इतनी ज्यादा आई. नहीं. सज्जल आया. हाँ, और सज्जल ने क्या, इतना जबरदस्त सीन था जब वो ऑडिशन देती है और फिर जब वो रोना शुरू करती है. मैं कहा यहाँ से सज्जल ने रोना शुरू किया था 2017 में. बड़ी बड़ी आंखों में से ऐसे टिप 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 आंसू बहते हैं. सो सरप्राइजिंगली आई एम एंजॉयिंग इट इवन दिस टाइम. It's good the way that they have taken these 3 stories और उनको आपस में उनकी बुनाई इतनी जबरदस्त है, और हर किरदार की एक कहानी चल रही है. आप उन कहानियों में भी इन्वेस्टेड हैं. आप यू आर क्यूरियस कि अच्छा क्या होगा. जो हीरो है हमारा वो चला गया पढ़ने कराची आ गया आगा खान. और क्यूट क्यूट रेफरेंसेस थे छोटे छोटे ना, जिस तरह बैरिस्टर उस्मान और जो वो क्या क्या है रब नवाज शाह, वो दोनों एचिसोनियन से ये ना. भाई हम एचएसएन में इकट्ठे थे, एक ही बैच के थे हम. तो ये मुझे अच्छे लगते हैं जो रियलिटी से मतलब बेस्ड रेफरेंसेस हों. मगर अब बेसिक चीज है कि नूरी का ट्रैक चल रहा है और अब नवाज की मुनाफिकत चल रही है रब नवाज कि वहां पे वो पूरी स्पीचेस दे रहा है वुमेन एम्पावरमेंट की, और ये और वो फलां और धमाक. और हाँ, हमने देखी बहुत ही हसीन और जमील पुरानी वाली जीक्यू
मुझे आप याद आए, मैंने जीक्यू को मैसेज भेजा, मैंने कहा कहाँ गई वो जीक्यू एक्टिविस्ट रोमाना जो है, क्या जीक्यू क्या हसीन लग रही है जीक्यू है। और फिर आप ये देखते नॉट हैं- दैट के जीक्यू अब हसीन नहीं है। नहीं यार, एक दफा आप फौजिया देख रहे हैं डायन में, एक ये आप देखें, रोमाना ये देख रहे जीक्यू हैं। इज जीक्यू। हाँ, जीक्यू को आप ये नहीं कह सकते कि जीक्यू पहले हसीन थी, जीक्यू हसीन नहीं है। हाँ। जीक्यू इज एजलेस, टाइमलेस, या टाइमलेस ब्यूटी। बट ये जीक्यू के जो किरदार हैं, हॉट वाली जीक्यू अबे यार अब वो जीक्यू आप इतनी को पुराना तो ड्रामा नहीं है 2017 मतलब तो कितना 10 साल भी नहीं हुए यार। नहीं, नहीं। वो जीक्यू हैज बिकम फौजिया एंड डायन यार। हाँ इससे मैं अब और मेरे ख्याल में मैं इतराज कर सकता हूँ बिकॉज दिस इज दैट्स माय शेयर लव फॉर जीक्यू। या हाँ बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ ये बिल्कुल कर सकते हैं आप। कि वो हॉट जीक्यू को आपने फौजिया बना दिया यार। किरदार की बात हो रही है ना, हाँ हाँ किरदार की बिल्कुल बात। जीक्यू 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 यार। वैसे she came on screen, I was like यार man, या टोटली बहरहाल तो डायनामिक जबरदस्त चल रहा है और उसका आपस में कोरिलेशन भी बहुत जबरदस्त है। आई हैव टू से दैट यार हिरा मानी हैज डन फैंटास्टिक इन यकीन का सफर। हीरा मानी तो नजर ही नहीं आई। थोड़े नहीं आई है ना, उसकी पूरी बर्थडे होती है, थोड़े आपको से जो तो सीन किरदार है हीरा के। हीरा मानी Are you serious? या बैरिस्टर दानियाल के जो मैंने दिमाग में आए तो मुझे हीरा मानी आई। मैं कहा मैं जरूर ये कहूंगी कि हीरा वाज वेरी नेचुरल एट दैट पॉइंट, वेरी नेचुरल, ओके बहुत नेचुरल उनकी परफॉर्मेंस है। और अगेन अच्छी सी हीरा मानी। नहीं मैं आई एम नॉट character. averse to Hira's performance but Maybe I'm also comparing now Geti to Shabab. So, you know. देखिए हीरा की अदाकारी में तो कोई मेरे ख्याल में दो राय नहीं है। हीरा को हमने बहुत अच्छे रोल्स में हमने कश्फ जब देखा था, शी वाज वेरी गुड। No, but it's दो very बहुत natural. It's a nice natural character. What I really like now is nice natural तो character. शबाब में A nice natural character. नहीं देखें, दो चीजें ना, एक तो है कि ड्रामा क्या है, लिखा हुआ क्या है, एक एक्टिंग है। दो जो शबाब है वो हीरा शबाब तो सही प्ले करी है ना। तो यहाँ पे मैं we have to appreciate Farid Ishtiaq's writing because character बहुत अच्छा है कि you know मियाँ लेट भी हाँ आया है। एक स्वीट नई नवेली दुल्हन टाइप, It's okay, yeah. it's अच्छा okay. क्यूट सा लेकिन किरदार तुम है। अभी भी नहीं आए और तुम 20 साल बाद भी नहीं याद रखोगे। तुम सोचिए 20-25 साल बाद उसमें क्या होगा। 20-25 साल बाद भी यही होना है, आप मेरी बर्थडे भूल जाएंगे। इसने मर जाना है, किसने? दानियाल ने। क्यों आप ऐसा सोचते हैं? और ये जो रेफरेंस है अरे तुमने तो- 25 साल बाद भी याद नहीं रखना, 25 तो होने ही नहीं इनकी। यार आप तो ऐसा ना सोचें ना। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं। रब नवाज ने अब तो स्टैब्लिश हो गया कि कनेक्शन जो मैं कह रहा था शायद हॉस्पिटल के थ्रू ये हो गया, ये केस लेगा रब नवाज के खिलाफ। आपका नहीं ख्याल कि उस्मान अली को मारेगा बाप को रब नवाज, बाप को क्यों केस ये लेगा ना, बजाय इसको मारने के? आप बार बार क्यों मेरा ध्यान उस तरफ लेके जा रही है कि इसका बाप मर जाएगा। आपको यकीन है बाप नहीं मरेगा? क्या पता दोनों मर जाए। मैं जो आपको कह रहा हूँ कि ये मरेगा बस, कौन? दानियाल, इसने नहीं जिंदा मैं आपको रहना, फिर बता देती हूँ कि दानियाल नहीं मरेगा, फिर आप उसका बाप मरेगा। खुश हो जाए। ये आप स्पॉइल कर रही है यार, ये खुद ही स्पॉइल कर रही है। मैं आप मेरा आप तो insist आप मेरा कर क्यों रहे हैं रिव्यू आप मैं उनको कह रहा हूँ कि हौसले से सुने, अच्छा, आप ठीक खुद है, नहीं आप हौसले से सुनते- सुन अच्छा, ठीक रही। है, मैं हौसले से आपने अब स्पॉइलर दे दिया, अच्छा आप सुनते जाएं फिर। आपने स्पॉइल कर दिया, ड्रामा स्पॉइल, अब फायदा नहीं, मैंने रिव्यू करा मैं अब क्या फायदा रिव्यू करने का। अच्छा नूरी का मैंने कहा कि यार आप direction- स्पॉइलर नहीं दे अच्छा, सकती I'm sorry, भाई, अब नहीं देती, okay. आपको मैं ब्लॉग भी नहीं कर सकता। हाँ। स्पॉइलर दे दिया अच्छा वापस आए नूरी के तो टेस्टिमोनी वो जो पे। था फोर शेडोइंग नहीं हो रही जो उसने कहा कि 25 साल बाद केक में मुझे लाऊंगा, नहीं तो पता, मैं मुझे याद नहीं, सारा आपने सारा मुझे याद मजाक ही खराब नहीं कर है कि दिया। क्या होता है, मुझे याद ही नहीं कि क्या होता है। हाँ, छोड़े यार, आपको क्या ख्याल है क्या यार होगा? आप अपना ओपिनियन दिया करें, आप ये क्यों कहती दानियाल हैं? मरेगा और सब कहेंगे कि ओ भाभी से तुम शादी कर लो असली, ये आपको ख्याल है होगा? पॉसिबल है, हाँ क्यों नहीं हो सकता? तो फिर तो इतनी देखते कोई रहें। ऑफ बात है हमारे ड्रामा यकीन का में? सफर है ना, फिर आप देखते रहें। यकीन यार के मैंने साथ। एक बात कहनी है, अगेन आपका फीडबैक सर आंखों पे, आप लोगों ने कहा ये आहत के असली बाल है, मैं अंधा नहीं हूं, मुझे पता है ये आहत के असली बाल है और मुझे पता है कि आहत के एक टाइम पे लंबे बाल थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्टर्स मिड ड्रामा अपने बाल कटवा देते हैं, तो एक उनका जो सीक्वेंस होता है उसमें उनके अपने असली लंबे बाल होते हैं, फिर जब उनको रीशूट कुछ कंटिन्यूटी करनी होती है तो फिर वो विग लगा लेते हैं। समझ आई आपको बात? तो पिछली जो पहली एपिसोड थी उसमें एक दो जगह पे आहत के अपने ओरिजिनल लंबे बाल थे, एक जगह पे उनको विग लगानी पड़ी क्योंकि शायद आगे चलते हुए उन्होंने बाल कटवा लिए थे, लेकिन फिर उनको पिछले कुछ सीन्स शूट करने थे। ये मैं गलत बात कह रहा हूँ? इस एपिसोड में जो उनका एक सीन आया जब वो गिटार बजा रहे थे और भाई से फोन पे बात कर रहे थे, वो आहत के अपने बाल, शॉर्ट्स पहन के, हाँ वो अपने बाल थे,
वो नजर आ रहा है अपने बाल में, लेकिन अगर आप जब पिछली एपिसोड में जाके देखेंगे तो आपको फर्क नजर आ जाएगा बालों में। मैं गलत कह रहा हूँ? नूरी का मुझे लगा था कि यार who is the actor? She's performed really well. सुहाई अब्रो, एक हैं? तो सुहाई अली अब्रो है ना, ये सुहाई अब्रो एक और एक्टर इसी नाम की और भी ड्रामा में We कर have चुकी two हैं। Suhai Abros? Yeah, we have two Really? Suhai- Yeah, we have two She's Suhai not, Abros. this Suhai is not working anymore. She's not working anymore, but she's done several supporting characters. अच्छा, very good equally actor. effective, very good guy, हाँ, very good actor. I just feel that hospital scene में makeup ज्यादा था. There was lipstick and there was mascara जो कि नहीं होना चाहिए था. मैंने notice नहीं. मैंने notice किया. As a matter of fact, the father's acting is also very Very good. good, हाँ. Father, Father, mother. mother दोनों. I really loved cute little Bilal. हाँ. जो अपनी बहन के लिए, you know. अच्छा, एक चीज नोटिस करें अब यकीन का सफर के बारे में कि जितने ये एक्टर्स हैं, रब नवाज गांव के, Yeah. including even Rab Nawaz, the actor who's playing, I'm pretty sure he's a senior actor. I think I've seen him. We also saw Ali Gul Malla, who's the PA. Yeah, but Rab Nawaz is Jhanzeb Gurchani. He is a senior. I know. So Jhanzeb Saab is so good. Then we also saw Ali Gul Malla briefly. Even the police wala. बड़े बड़े लोग आए हैं भाई, आप अगर देखना शुरू करें, जो सज्जल की दोस्तें होती हैं, नवाल और दूसरी वाली दोस्त भी, हाँ, तो वही थी जो सुन मैंने दिल में, हाँ, हम देखते रहते हैं। अब ये सब देखे वाले अगेन यार, नवाल has changed quite a bit. बिफोर एंड आफ्टर डालो नवाल का भी, डाल के देख ले, या आप नवाल से डायरेक्टली पूछ ले। नहीं, मैं नहीं पूछना चाहती, ये पर्सनल सवाल है, चैट जीपीटी के साथ अच्छी तो अच्छी। अच्छा, बट मैं कह रहा था कि जो रब नवाज, हम हसन शाह को देखा, जहांगीर, रब नवाज, मेरी बकवास खत्म होने में यार पीएमएस से देखा क्या हो गया। जो रब नवाज गांव में जितने अदाकार हैं, दे वेरी गुड। सो कहने का मकसद ये कि हमारे ड्रामों में अब सपोर्ट कास्ट के ऊपर इतना ख्याल नहीं करते लोग, मतलब वही जो चेहरे बहुत रिपीट होते हैं ना, रेपिटेशन बहुत होती है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी। बताए ना। मैंने छोटा सा इंटरव्यू देखा अदील अफजल का, ओके, किसी चैनल पे बैठ के बात कर रहे थे, और मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगी इस बात की, बिकॉज मैंने ये बात सोची लेकिन कही नहीं, और उनके कहने से मुझे ये बात रीइंफोर्स हुई। पीटीवी का जमाना बहुत बुरा भला कहते हैं कि जी बोरिंग था, एक ही स्टेट टेलीविजन था, एटसेट्रा एटसेट्रा। उस वक्त आपके 4 स्टेशन थे या 5 थे? 4 थे, मैं हाल है, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, और आपकी इस्लामाबाद नहीं था? इस्लामाबाद, हाँ, 5 स्टेशन थे। हर स्टेशन से एक वक्त पे एक ड्रामा आता था, और जो किरदार और कहानियां होती थी वो उन्हीं जगहों की होती थी, एक्टर्स भी उन्हीं जगह के लिए जाते थे, ये मैंडेटरी था। That was the point. That was the whole point. और फिर जब आपके सारे स्टेशंस कराची आ गए तो आपके एक्टर्स भी इधर उधर हो गए। अब ये बड़ी अच्छी चीज थी पीटीवी की कि एक्टर्स को काम भी मिलता था, रीजनल एक्टर्स को काम मिलता था, और वो नहीं होता था एक एक्टर ने अगर काम कर लिया तो अगले ड्रामे में वो एक्टर नहीं हो सकता 6 महीने तक वो काम नहीं कर सकता फिर। सो एवरीबॉडी गॉट अ चांस, और कहानियां जगह जगह की ऑथेंटिक होती थी। अब वो सारा विशी वॉशी हो गया, तो ये अच्छी चीज थी। नहीं, लेकिन अच्छा टैलेंट है। आप जहांजेब साहब को मेरे ख्याल में कास्ट करना चाहिए मजीद ड्रामों में। हम इतने सिंधी वडेरे देखते हैं हमारे ड्रामों में, देखते नहीं? हर ड्रामे में एक आप मतलब जवार शाह क्या है, एक सिंधी वडेरे ही है ना। तो मतलब हर ड्रामे में आप मीर हाउस में यही दिखा रहे होते हैं, हैदराबाद ये वो। तो आप डालें सीनियर एक्टर्स को, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं हमारे और इतने जबरदस्त एक्टर्स हैं। डालते भी हैं, आपको मंटो में डाला है ना, आसिफ रज़ा मीर को भी डाला है, बाबर अली साहब को भी डाला है, डालते भी हैं, मगर रीजनल एक्टर्स भी हमारे बहुत हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। तो ये बात मैंने बड़ा अप्रिशिएट करने वाली है कि कास्टिंग यकीन का सफर की बड़ी स्ट्रांग हुई है, इट्स गुड कास्टिंग। अच्छा, तो अब आप ज़ूबिया के स्कूल की तरफ आ जाएंगे। ज़ूबिया, मैं सज्जल के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ जी। मैं सज्जल के बारे में ये बात कहना चाहता हूँ, हालांकि पिछली बार आपने कहा कि मंटो में आपने कहा कि यार शी इज प्लेइंग 19। सवाल उठाया नहीं, आपने सवाल उठाया, आपने कहा अब यहाँ पे भाभी कहती 16 साल की हो गई हो। 16 साल की हो गई हो तुम्हारी उम्र में लड़कियां पूरा पूरा किचन संभालती हैं। She does look like a... मेरे ख्याल है भाभी को गलती लगी है, because FA में 16 साल की बच्ची नहीं जाती। So what you're telling me? जाती है। So are you telling me that Sajjal after so many years is actually playing the same age that she played when she was Zubia? Yes. What is your opinion on this? I'm okay with it because she can deliver. The reason why I'm okay with it is she can deliver. 16 साल देखें, मैट्रिक इंसान 16 पे करता है और फिर FSC में भी 16 पे ही जाता होगा ना, 16-17 साल की होगी।
यहाँ तो पे, सेम एज ब्रैकेट हो गया ना। लेकिन वहां पे वो कॉलेज कॉलेज में गई है तो 2 20 साल बड़ी है, 2 साल का फर्क है। यहाँ 16-17 है, वहां पे 19-20 है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, आप मुझे चैट जीपीटी से पूछ के बताइएगा। जी, मेरे ख्याल में इसकी मेन वजह ये है कि सज्जल हैज केप्ट हर नेचुरल I फेस, think so too. है ना? I agree with you. सो जब मैं अब 16 साल की या ये जूबिया को जब मैं देख रहा हूँ और जब मैं मंटो में सज्जल को देख रहा हूँ, तो सज्जल के चेहरे पे कोई बहुत ज्यादा नहीं है ट्रीटमेंट या जो कॉस्मेटिक वो नहीं है। सो इस वजह से मुझे सज्जल की शक्ल सेम लग रही है, और ये एक बहुत चीज मैटर करती है। जब आपको शक्ल सेम लग रही हो तो फिर आप, मेरे ख्याल में वाकई में सज्जल हैज रियली लाइक यू नो ओवर दीज 10 years शी इज लाइक यू नो केप्ट हरसेल्फ एट द सेम लेवल, यू नो। तो वो इतना आपको ऑड नहीं लगता जब आप मंटो में देखते हो कि शी इज प्लेइंग अ 20-year-old। ऑब्वियसली उम्र में तो फर्क है ना, कितना मतलब 8-9 साल हो गए, कितने 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 साल हो गए। 1 साल पहले शूट हुआ, 9 साल हो गए। वही 8 साल हुए हैं जो जीक्यू हुए हैं, वही 8 साल हुए जो जीक्यू वो, अब लेट्स बी फेयर, वही 8 साल हुए हैं जो नवाल को हुए हैं, जो नवाल को हुए हैं, है ना? वही 8 साल हैं जो सबको हुए हैं। नवाल वैसे ठीक लग रही है बीबी गुलबेब, आखिर नवाल ने प्ले किया था, अच्छा किया था, अगर आपको याद हो तो। नहीं, बट आई थिंक शी इज गॉटन समथिंग डन व्हिच इज ओके। I've got no problem with that. Nawal looking much better now. Gulbeb was much better than. I think she looks beautiful here as well. Okay. But हाँ, चीजें होती हाँ, हैं, मैं ये यार, आप मेरी बात को यार, आप ऐसे ना, आप ऐसे बंदे को उसमें awkward पोजीशन में डाल यार, मैं तो genuinely मैं ये तो नहीं कह रहा कि बुरी लग रही है, मुझे नहीं लग रहा इतना कुछ कराया हुआ है चेहरे पे, मुझे अच्छा। genuinely नहीं लग रहा। ठीक है, I think features का कोई फर्क नहीं लग रहा मुझे थोड़ा सा लगा है आपको? मुझे थोड़ा सा लगा तो वो, लेकिन सज्जल का आपको इतना नहीं लगता, नहीं, तो इस वजह से आई थिंक शी कैन ऑल्सो पुल ऑफ मंटो। मंटो में क्या नाम है? आ रहा है महमल। No, but that's also because I think थोड़ा बहुत इंसान की अपनी जीन्स भी अप्लाई होती हैं कि वो है, she's petite, she's innocent looking, she's got a slightly roundish face. These kind of faces and looks take time to age. कई चेहरे जल्दी एज, आंखें माशाल्लाह वैसी है ना, तो आंखों से फोकस ही नहीं शिफ्ट होता। हाँ, आंखें तो नहीं एज करती ना, वो जो ऑडिशन दे रही होती है, जो हाँ, वो कैसे ना रोल में, वो आंखों बंदा आंखें देख रहा आंसू, तो बंदा को और फोकस कहीं जाए नहीं ना आंखों के अलावा। पेटीट सी भी है तो वो उसका जो है ना फीचर्स, एज, स्क्रीन एज वो ज्यादा नहीं है सजल की, ऐसा नहीं है, है, नहीं है, नहीं, एब्सोल्युटली ऐसा है। देखें, अभी हमने जब जर्द पत्तों का बंद भी देखा था तो इतना वो नहीं महसूस हुआ, एफएससी की बच्ची थी, ऑल्दो फेल हुई भी थी कई साल, वुड बी ओल्डर, लेकिन ये हमारे ड्रामों में यार बच्चियां इसी उसमें होती हैं, प्राइम एज है ना ये, कॉलेज की प्राइम 2-4 साल ऊपर नीचे कर, प्राइम एज 2-4 साल ऊपर हो जाए क्या होगा, यही है। चलो यहाँ पे तो किरदार ही ये दिखाया हुआ है कि 16 साल की बच्ची है, यहाँ तो टाइम लैप्स है ना, किरदार आगे चल भी रहा है, वक्त भी गुजर रहा है ना, कहानी भी। मैं सिर्फ ये सोच रहा था अगर ये 16 की है तो आहत का कैरेक्टर तो 23-24 का होगा, तो इनमें फर्क है उम्र में, दोनों में इतना तो होता ही है। तो अच्छा, 23-24 साल का लड़का और 16 साल की लड़की, ये तो ऑड डायनामिक है भाई, मैं अभी से कह रहा हूँ। आपने यही बात परवरिश में कही थी, क्योंकि वो इतना फर्क भी नहीं था, मगर आपने कहा कि ऑड है, तो अब कहें ना ऑड है, मैं कह रहा हूँ ऑड है, और कैसे कहूँ, मैंने एग्जैक्टली ये बात कही है कि 23-24 तो यार मिले भी नहीं है ना वो आपस में, हैं? मिले भी नहीं है ना भाई, आप लोगों ने इतना हवा क्रिएट किया, बेवकूफ इंसान अभी वो। मैं ये बात रजिस्टर कर रहा हूँ, अल्लाह, नहीं वो तो they met? Have these two characters met? So they'll meet when she's 19 and he'll be 30. They will meet when she's 30. बस when she's 30. हाँ, बात सुने एक सेकंड, हाँ, आपने मीम से मोहब्बत देखा? हाँ, उसमें आहत was 29-30 हाँ, and दनानीर was 19-20. No, आप ये बात मान लें बस के। भाई मैं आपको सिर्फ ये अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करूं, मुझे नहीं पता कहानी में क्या होगा। मगर आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं ना, आप लोगों को कह रहे हैं, प्रीएम्प्ट इसलिए कर रहा हूं, लोगों को कह रहे हैं कि आप मुझे मत जज करें, अगर कहानी जहां जाएगी मैं उसके मुताबिक, मैं ओपिनियन चेंज कर लूंगा। अभी तो ये दो किरदार मिले भी नहीं है, आप लोगों ने इतना हवा बनाया हुआ है कि आहत और सज्जल का ड्रामा, यकीन का सफर, तो मैं अज्यूमिंग कि उनका रोमांस होगा बीच में, नहीं होगा? आप ये कह रही है कि आहत और सज्जल, ये तो नो ब्रेनर है ना, ऑब्वियसली होगा, तो फिर मैं यही ऑब्जर्वेशन, किस उम्र पे होगा ये आपको नहीं पता। ठीक है, इतना एज डिफरेंस है, 8 साल का एज डिफरेंस है, नहीं 8 साल का नहीं है, कितना है, कितना होगा? वो अगर डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो बैचलर्स के बाद ही एनरोल किया होगा उसने एमबीबीएस। नहीं, एफएससी के बाद आप एनरोल करते हैं मेडिसिन में। किसकी बात कर रही हैं आप? असफी की। असफी एफएससी के बाद उसने एनरोल किया, तो वो जो कहता है मैंने अपने राउंड्स करता हूं जब रात को, तो एफएससी का बच्चा जो है राउंड्स कर रहा होता है अस्पताल में,
जो उसने अपने भाई को बोला, भाई ने खत लिखा, पकड़ी गई हैं आप। नहीं सोच रही हूँ मैं, मेरे को पैसे नहीं लगे भाई, यकीन भाई ने जो खत लिखा, ईमेल लिखी, उसमें पूरी उसने कहा कि जब मैं राउंड्स कर रहा होता हूँ, जब मैं पढ़ाई की तैयारी कर रहा होता हूँ, हॉस्पिटल में होता हूँ रात, तब आप नहीं करते। नहीं तो स्टूडेंट करते हैं, आपने ग्रेज एनाटॉमी नहीं देखा? तो उनकी उम्र क्या होती होगी? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होते हैं। 23-24 तो होती होगी ना? हाँ 23-24 होती होगी यार। What age is Asfi? Is all I'm asking. Could he go into his like BSc first year medicine, which one would go, I'm assuming, at 19, 20, 21, 22? So you're saying Asfi is 20? Asfi is 20. ठीक. So basically what? खबरदार आपने अस्सी को कुछ कहा। नहीं, Asfi is 20. हाँ। Asfi is 20. So basically आपका point of view ये है कि Asfi is not 20. आप सही कह रहे हैं। वो ही है। 24, 16 and 24, 8 साल का डिफरेंस हो गया इसका। नो, हाँ 8 साल है। हाँ हिसाब नहीं सही मेरा, हाँ 8 साल है। मेरा तो ख्याल है ये भी नहीं है, हम क्यों, why are we taking भाभी's comments so seriously? She's not 16, she's 17, 18. FSC में है ना, FSC में 16 साल पे तो बंदा। ओ भाई, जब आप लोगों को कुछ जस्टिफाई करना होता है ना, आप लोग कुछ भी करके जस्टिफाई कर लेते हैं। भाभी गलत कह रही है, भाभी को पता उसको ऑटिज्म है, उसने हायरार्की गलत लिख दी है इसलिए क्योंकि उसको ऑटिज्म है। हाँ। किसी ने कमेंट किया, उसने जानबूझ के गलत लिखा है क्योंकि उन्होंने दिखाया कि यार कुछ प्रोफेसर जो होते हैं उनको नहीं सही स्पेलिंग आते। ये लोग जो ऑब्वियस चीज है वो नहीं माननी होती। मैं कोई कंप्लेन तो नहीं कर रहा, मैं अभी तो वो मिले भी नहीं है, आगे कहानी हो सकती है। 16 की है और ये 24 का है तो 8 साल का फर्क है बस। ये ऑब्जर्वेशन होता है लोगों में। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन थी। मैंने तो ये बात की ही नहीं कि भाई ये गलत है, वो मिसमैच्ड हैं, उनकी नई केमिस्ट्री आपस में, ये तो आगे चल के बातें होंगी। एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने मेंटल नोट बना लिया कि भाभी ने कहा 16, तो ये बात आ गई कि यार अच्छा ये 16 साल की बच्ची है। बच्ची है ना 16 साल की? 16 साल की बच्ची है, बिल्कुल बच्ची है 16 साल। हाँ, और आपको माइनर है, पता चल जाएगा बच्ची कितनी बच्ची है। आप देखा है? स्पॉइल कर तो नहीं दिया मैंने, स्पॉइल कर रही, बिला वजह स्पॉइल ये तो स्पॉइल नहीं किया कोई बिला वजह, बस आपने आप जाती मेरा एक्सपीरियंस खराब। नहीं, मैं आपको वो दे रही हूँ, टीजर दे रही हूँ, आपको कुछ पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं तो कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, तो बता रही हूँ ना, पता चल जाएगा कितनी बच्ची है, टीजर दिया मैंने आपको। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यकीन का सफर एंगेजिंग जरूर है। चलिए आप भी बताएं कि अब इसके साथ क्या होगा। किसके साथ? जूबी के साथ। जूबी का तो आपको पता लग गया कि भाभी जो है वो डायन बन के इसकी जिंदगी में आ गई है। और भाभी जो है, भाभी कौन है यार? ये एक्टर को देखा हमने? हाँ, कई रोल कर चुके हैं। ये भाभी जो है उन्होंने जिस तरह से सोना अपनी सास का छप्पड़ किया, लेकिन ले लेते हैं, लेकिन वो जो है ससुर साहब, वो फिर ससुर ऐसे तो नहीं है, तो वो सब उनको उन्होंने सोना निकलवा लिया उससे। भाभी जिस तरह से अपने मियाँ के साथ बदतमीजी करती है, मैं अगर होता ना तो मैंने आगे से बहुत बदतमीजी करनी थी। इसलिए और की औकात ये है कि महीने के आखिर में तनख्वाह मुलाजिम की, उसके हाथ में पैसे कुछ रख दिए जाते हैं लड़की के साथ। तो लेकिन जो मियाँ का रिस्पॉन्स आगे से वो मुझे अच्छा लगा कि मियाँ आके उसके पास बैठ जाता है। हालांकि मियाँ को नकम्मा नकट्टू क्या क्या नहीं बोला कि तुम बाप के सामने हाथ फैलाते हो, तुम्हारी औकात ही नहीं है, कुछ नहीं। तो ये उसको बहुत मायूब किस्म का एक किरदार दिखाया गया। तो इसने तो अब जूबी की जिंदगी को हराम कर देना है, अजीरन कर देना है। तो जूबी के पास एक ऑप्शन होगा, और बाप से वो पहली नफरत करती है, तो या तो ये अपनी खाला के पास चली जाएगी, क्योंकि खाला का सीन आप डाल रहे हैं बार बार, तो खाला की कोई रेलेवेंस नहीं। बात बड़ी अच्छी की है। औरत हसीन और खूबसूरत हो तो मर्द को एहसास कमतरी होने लगता है। मैंने जो याद किया माँ को, वो बड़ी खूबसूरत होती थी, और जब औरत इतनी खूबसूरत हो तो मर्द जो है वो इनसिक्योर हो जाता है। ये बड़ा अच्छा डायलॉग, ये अच्छा था। तो ये तो हमें पहली किस्त में एस्टैब्लिश हो गया था कि वो जो मियाँ था वो इनसिक्योर था, इस वजह से, अपनी इनसिक्योरिटी की वजह। अगेन यार मर्द बहुत बड़ा हो ना, लड़की छोटी हो, तो इनसिक्योरिटी फिर आ जाती है। हाँ, ये बात रिलेशनशिप एडवाइस है, ये आ जाती है जब लड़की और लड़की की बहुत एज डिफरेंस हो ना। अब ये और बात है कि अब हर बंदा डॉक्टर असफी तो नहीं होता। लेट्स सी। अब आपने कह दिया डॉक्टर असफी, आपने स्पॉइल कर दिया तो मेडिसिन पढ़ रहा है कि वो डॉक्टर बन जाएगा, इसका मतलब है, इसका ये मतलब हो कि वो डॉक्टर बनेगा। यार मैं रिव्यू ही नहीं करती, इसका ये मतलब हुआ कि वो डॉक्टर बनेगा, आपने स्पॉइल कर दिया। चले इतना मैं दे सकता हूँ आपको, क्योंकि उसने, मैंने देखा टाइटल पे भी उसने वो स्टेथोस्कोप पहना है अपने गले में। स्टेथोस्कोप होता है, पता नहीं कहीं स्पॉइल ना हो जाए आपके लिए ड्रामा, अगर मैं आपको बता दूं क्यों क्या। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जूबिया ने इस घर में नहीं रहना। किस घर में? ये जिस घर में है, ठीक है, इस घर से इसने निकलना है, वन वे और दी अदर। और जो वो ट्रॉफी उसने छुपाई है, मुझे लगता है वो भी पकड़ी जाएगी ट्रॉफी, जो नाच रही थी। हाँ, अनारकली बन के जो नाच के। अच्छा, ये वैसे एक मेरे, जब मैं वो सीन देख रहा था, हाँ, तो बड़ी ये इंटरेस्टिंग बात मेरे जहन में आई, थोड़ा सा इस पे आप रोशनी डालें
कि बच्ची है, शी इज जस्ट लॉस्ट अ मदर, इतना हाँ। वक्त नहीं हुआ, और इसका बाप जो है वो बड़ा एक खुरान किस्म का इसका बाप है, घर पे भी इसके भाभी की वजह से और सब वो नहीं है. शी इज फाउंड दिस आउटलेट. वो जो एक मोमेंट था ना व्हेन शी इज डांसिंग एंड अगेन सज्जल हैज परफॉर्म दैट सीन सो ब्यूटीफुली. यू सी दैट ज़ूबिया को वो आउटलेट मिली है कि जो उसका एक माँ का बिछड़ने का गम, बंदा सोचने को सोच सकता है, एक बच्ची अभी माँ मरी है, ये डांस कर रही है स्टेज के ऊपर, तो वो सोच आई, लेकिन क्योंकि सज्जल ने उसको ऐसे परफॉर्म किया, यू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज, वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम. एस्केप है उसके लिए. ये एस्केप है कि उसकी माँ का गम, बाप के जिस तरह का किरदार है, भाभी जिस तरह से ट्रीट कर रही है, शी फील्स लिबरेटेड. वो घर आती है, कहती है मुझे भूख लगी है, माँ खाना दे दो, फिर रियलाइज करती है माँ नहीं रही. किचन में खाना रखा है, खाली जगह, मैं थक गई हूँ, आराम करूंगी. और मेड जो होती है वो भी मैं कहती हूँ कि कहती मैं तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं थक गई हूँ, तुम खुद ही खाना खा लो. वो इतनी सी दाल और सूखी हुई रोटी के साथ खा भी रही है, रो भी रही है. बड़ा पावरफुल सीन था. So even the Narkari, there was a good nuance. कि यार के on the face of it, she is dancing, she is happy, she is smiling, कि यार ये इसकी तो माँ मरी है, ये स्टेज पे नाच रही है. लेकिन वो आउटलेट अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा, आपको अगर आप इस तरह के टाइम से गुजर रहे हो, तकलीफ दे दौर से गुजर रहे हो, और एक बच्ची है 16-17 साल की, और उसको वो मौका मिला कि वो एक अपना जो उसके एहसासात हैं, जो एक बैगेज है, उसको किसी तरह से वो रिड्यूस कर सके. और एक बॉय उसको मिलता है कॉलेज में, हाँ, नबील जुबैरी, लॉट ऑफ एक्टर्स जिनको हम देखते रहते हैं. एंसेंबल कास्ट है. मैं वापस मैं उन पे जाऊंगी, रब नवाज शाह को. His son was played by Hassan Shah, जिनको वो कितनी बार बोल रही, रब नवाज son was played by हसन शाह. वही ना, मजे के थे कैरेक्टर सारे, और भी बड़े हुए थे, याद भी नहीं अब आ रहे. मुझे वो दानियाल वाला भी पसंद है, वो आता है बीवी के हल्के से पैर को ऐसे करता है, गुड सीन. फिर बीवी का वो जो डायनामिक दिखाई है अच्छा है. बस मुझे तो ये लगा मर जाएगा आपने, लेकिन स्पॉइलर दे दिया कि नहीं मरेगा. सारा आपने ड्रामा खराब कर दिया. तो ये एनीवे, एनीथिंग एल्स आमना you'd like to? एक चीज है कि आई जस्ट फील दैट यकीन का सफर देखते हुए डायरेक्शन की हम कम बात कर रहे हैं. आई फील दैट देयर इज ओवरवेलमिंग यूज ऑफ म्यूजिक, जिसकी जरूरत नहीं है. ये मैंने 2-3 दफा, ये मैंने लास्ट टाइम देखते हुए भी नोट किया था, और अब ज्यादा मुझे नोटिस में आ रहा है कि एक अच्छा भला सीरियस सीन चल रहा होता है, और जो OST का जो म्यूजिक है वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, कॉन्स्टेंटली. फॉर एग्जाम्पल जब खाला बैठ के अपनी बेटी को बता रही हैं कि उसकी माँ ऐसी थी और बड़ी खूबसूरत थी, और पीछे म्यूजिक चल रहा है किस्म का. इट्स ओवरपावरिंग म्यूजिक, जो कि इतना नहीं होना चाहिए था. खूबसूरत बीवी होने के बावजूद खालू का रवैया ऐसा क्यों था? मैंने नहीं इतना, आप नोट करिएगा अगली दफा. इतना नोटिस नहीं किया मैंने. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जहाँ एपिसोड 4 खत्म होती है, I feel कि मे बी एपिसोडिक लिखा नहीं गया. It was not really a point to end the episode on. हाँ. But बहुत ही ब्ला मोमेंट पे एपिसोड खत्म हुई, जबकि और बड़े मोमेंट्स थे जिस पे एपिसोड खत्म हो सकती थी. किस पे? रब नवाज पे खत्म हुई ना? नहीं, रब नवाज पे नहीं खत्म हुई, नजमा की शादी पे, कि वो नेबर्स आए हैं इसकी अब्बी को मुबारक देने की, हमारी बेटी की दावत, शादी की. नजमा कौन है? एग्जैक्टली, नजमा को पता भी नहीं. उसकी बहन है मेरे ख्याल में. जो 2 रिश्तेदार आए हैं इनविटेशन देने की, आपकी शादी, तो उसके बहू की बहन है ना. तो वो कहते हैं कि उसका तो चक्कर नहीं चल रहा था, और यहाँ पे हाँ, तो 3 मेरे ख्याल में रब नवाज पे खत्म हुई थी. 3 रब नवाज पे खत्म हुई थी, 4 इस पे खत्म जब वो स्पीच दे रहा होता है. हाँ, तो ये मतलब है कि बिल्कुल हाँ, फ्रीजेस हिले हुए हैं, बिल्कुल फजूल फ्रीज था. लेकिन अच्छा है, मुझे पसंद आया यकीन का सफर. अभी आपको और पसंद आता जाएगा. स्पॉइल कर दे आप यार, ये बहुत स्पॉइल करती है, इनको ब्लॉक भी नहीं कर सकते किसी तरह से, क्या करें. तो आपने तो चाह रहा है कि एक एक कहानी का जो मोड़ है ना, तोड़, वो मैं आपको कर दें. हम नहीं देखते फिर यकीन का सफर, आप कर दें स्पॉइल. दिल तो चाह रहा है कि बता दूं कि आगे एक एक किस्म में एक एक किरदार के साथ क्या होगा. मैं आपको दोबारा ये याद दहानी कराना चाहूंगा, स्पॉइल ना करिएगा. मैंने यकीन का सफर नहीं देखा हुआ. ये मेरा एक वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सा ओपिनियन है. जैसे जैसे देख रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. आप लोग बड़े स्ट्रॉन्ग फैंस हैं और आपका बड़ा एक प्यार है अपने अपने एक्टरों के साथ, तो यार माइंड ना कीजिएगा. हो सकता है मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए आगे चलते. होगा, हो नहीं सकता, होगा. 16 और 24 में पता नहीं कैसे होगा. 8 साल का फर्क. यही फर्क जब दना नीर और आहद में था, मीम से मोहब्बत में, तो आप लोगों ने बड़ा शोर मचाया था. ये क्या बात है, कुछ किरदारों को माफ होता है. आपने क्या कहा था उस वक्त? क्या कहा था? आपने ये कहा था कि अगर ये 24 की होती और वो 30 का होता तो मुझे इतना फर्क ना लगता. ना लगता. है. मैंने ये सही कहा था. नहीं लगेगा.
ठीक है, आप एक और स्पॉइलर दे दिया कि टाइम लैप्स आएगा। आप कर देना, आप खराब एक ही बार में खराब कर दें, एक ही गो में आप सब बेड़ा गर्क कर दें। आप बता दें, एक ही गो में आप बता दें। बेवकूफों वाले सवाल आपको मैंने अभी कहा कि ट्रीट मी लाइक जस्ट विद दिस थॉट कि आई हैव नॉट वॉच्ड इट बिफोर। I am telling तो you. बेयर विद मी यार, मैं पहुंच जाऊंगा कितने हफ्ते। मतलब मैं डेफो डम हो जाऊं, आप कर ले अकेले फिर रिव्यू। आप यार ये आप स्पॉइल क्यों करती हैं? आप ये भी तो कह सकती ना, ओके वेट एंड वॉच, बस इतना। मैंने कहा है ना वेट एंड वॉच, मैं तो कुछ नहीं कहा। आपने कहा कि आपने कहा था 24 और 30 का ऑड होगा या नहीं होगा, तो बस ठीक है, नहीं होगा, इसका मतलब है टाइम लैप्स आ जाएगा। क्या पता यार, किरदारों की शादियां हो, फिर आपस में कुछ और हो जाए। देखिए 8 साल का डिफरेंस, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर लड़की मैच्योर हो जाती है, 22, 23, 24 की हो जाती है तो नो प्रॉब्लम। अभी 16 की है ना? हाँ, मिली है वो डॉक्टर एसपी से? नहीं। आपको मैंने क्या बोला यार, मैंने आपको ये बोला कि आई मेड अ नोट ऑफ बार बार नहीं, आपने ये ताना दिया ना कि उस वक्त तो आपने बड़ा शोर मचाया था, तो अब क्यों नहीं मचा रहे? इसलिए नहीं मचा रहे कि अभी मैंने ये नहीं कहा शोर नहीं मचा रहे, मैंने कहा पॉइंट टू बी नोटेड। हो सकता है शोर मचाने की जरूरत ही ना पड़े। आप तो मेरा स्पॉइल करते जा रही हैं, एक्सपीरियंस स्पॉइल करते जा रही हैं। ऐसा लगता है किसी ने आपको पैसे दे के यहाँ पे बिठाया, कुछ खिलाओ आज, कि आप मेरा एक्सपीरियंस खराब करें। आज पता नहीं क्या हो गया इनको, मैं गैस लाइट भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कह सकती कि कर गैस लाइट एक्सपीरियंस खराब किए जा रहे हैं। आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं खराब करना, जस्ट बेयर इन माइंड, मैंने पहले देखा हुआ नहीं है। तो जो भी कमेंट करें, डोंट पोस्ट एनी स्पॉयलर्स, एंड आई एम श्योर कि आगे चलते हुए बहुत कुछ होगा ड्रामे में जितनी तारीफ करते हैं आप लोग। 6 साल का फर्क है, 12 8 का। ख्वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट फिलहाल आपसे चाहेंगे इजाजत। आपसे कल आपने आमना का इंटरव्यू देखा होगा भाई, वाह वाह। कल आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा कोमल वीर के साथ। क्योंकि अपने इंटरव्यू के इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको समथिंग हॉट में कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको। नहीं, मैंने कुछ और भी नहीं कुछ किया, इतना इंटरेस्ट है और इंटरव्यू करने की हद तक लगा दिया। बात किया आपने आज? नहीं। क्यों नहीं किया आपने? इंटरेस्ट नहीं है आपका? बात करें भाई, बताएं अपने इंटरव्यू के बारे में। क्यों किया आपने कोमल मीर का इंटरव्यू का? क्यों, क्या जरूरत पेश आई? ड्रामा शुरू हुआ गूंज, जिसकी पहली केस हमने देखी होगी मंडे को सबने, अगर अभी तक नहीं देखी प्लीज देख लें, बिकॉज हम उसका रिव्यू करेंगे अगली रिव्यू में। तो अब ये कोमल मीर इज इन अ कंप्लीटली न्यू एवेटार अकॉर्डिंग टू हर हरसेल्फ, कि मैंने इतना रोया है 3 ड्रामों में, रो के मेरा हशर हो जाता था, आंसू सूख जाते थे, फिर विक्स का इस्तेमाल करती थी, ये सब उन्होंने इंटरव्यू में बोला है। तो मैंने कहा आई वांट टू डू अ डिफरेंट रोल, और कहती है इट वाज अ रिस्क दिस कैरेक्टर, बिकॉज आपका एक तो ये है कि वो लड़की बहुत चलती है ड्रामों में जो रो रही होती है और इस किस्म की इतनी पॉपुलर नहीं होती, वो भी आपने उसको वेस्टर्न पहना दिया, तो वो भी ऐसा है कि आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि ऑडियंस कैसे रिसीव करेगी नजरनाब को। सो शी हैड अ लॉट टू से। तो जहां आप बाकी एक्ट्रेसेस के और एक्टर्स के अपीयरेंसेस की बात कर रही हैं, तो आपने चैट जीपीटी से पूछा या आपने कोमल मीर से ये सवाल किया? मैंने कोमल मीर से किया सवाल। ठीक है, और उन्होंने जवाब दिया। मगर चैट जीपीटी को भी पूछूंगी, वैसे आपका पॉइंट अच्छा है, और चैट जीपीटी जरा ज्यादा गहरी बात करता है। ठीक है, ठीक है। तो कल आपने कोमल का इंटरव्यू देखा होगा और इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे और भी। कोमल मेड अ लॉट ऑफ सेंस एक्चुअली, शी मेड अ लॉट ऑफ सेंस व्हाटएवर शी सेड अबाउट हर वर्क, अबाउट हर द इंडस्ट्री, एवरीथिंग। ठीक है, तो फिलहाल आपसे भाई हम इजाजत चाहेंगे। मेरी और आमना की अब आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे को। फ्राइडे इज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट रिव्यू / डिस्कशन, क्योंकि हमारे पास होंगी परवरिश की 2 किस्तें, हमारे पास होंगी जो कि शायद नहीं खत्म हुआ इस हफ्ते। हाँ, पता नहीं आपको किसने का खत्म हुआ, सबने कहा। हमारे पास होंगी परवरिश की 2 किस्तें, हमारे पास होंगी डायन की 2 किस्तें, हमारे पास होगी एक झूठी कहानी की 1 किस्त, और हमारे पास होगी गूंज की 1 किस्त। मैंने आमना जी से कहा है कि नक्श मैं नहीं देखना चाहूंगा, लेकिन अगर आमना जी नक्श देखना चाहेंगी तो फिर हम एक नक्श की एपिसोड को भी रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, ठीक हो गया ख्वातीनो हज़रात। ऑन दैट नोट फिलहाल आपसे चाहेंगे इजाजत। विल सी यू ऑन फ्राइडे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा।